Good morning, all of you. Today, we are going to do the topic of closed packed structures. Closed packed structures. Till now, whatever we have done, okay, I'm not saying it is not important, it is too much important. But today, the topic which we are going to start, that is closed packed structures, it is too much important and very much important for the topic which we have to study forward. Okay, so let us start the topic. So first of all, the closed packed structures means what? Suppose if you have a solid, the constituent particles are closed packed, leaving the minimum vacant space. Closed packed structure matlab what? Suppose if you are doing anywhere in the packing, समझ लो कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, तब सामान का पैकिंग करना पड़ता है. So in a luggage bag, when you put your luggage, how you have to put it? आप कैसे अंदर सामान रखोगे? There are so many methodology. Few they used to keep it properly. So, and if the number of luggage is more, okay, in that cases, what we used to do it, we used to pack it in a proper manner. हम बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से रखेंगे. ठीक है. So कैसे रखना है? Inside the bag there should not be any vacant space. So ऐसे ही हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं क्लोज पैकिंग की, सॉलिड के अंदर जब एटम का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ओके, सो एट दैट टाइम द मिनिमम वैकेंट स्पेस शुड बी अवेलेबल. मिनिमम. अगर स्पेस अवेलेबल ना हो तो वो बढ़िया है, बेटर है. ओके, तो वो बढ़िया बेटर है. बट सपोज इफ इट इज अवेलेबल, तो वो बहुत कम होनी चाहिए. ओके, now let us consider the constituent particle as an identical hard sphere. We considered the identical particle as an atom, ion or a molecule as a hard sphere. मतलब कि गोला consider करेंगे, the ball. Okay, and build up the 3D structure in 3 steps. Okay, आपको बॉल कंसिडर करना है और बॉल को अरेंज करना है डिफरेंट अरेंजमेंट में. ओके, और उसके लिए हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स है. ओके, इन अ सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोज्ड बैक, लिविंग द मिनिमम वैकेंट स्पेस. हम कुछ भी करके जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं सॉलिड स्ट्रक्चर में, तो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इट शुड बी, मतलब कि उसमें स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए दोस्तों. ओके, वेरी लेस. ओके, let us consider the constituent particle as identical hard spheres. Just now I have said considered as a identical hard sphere, मतलब कि ball we are considering as a ball, atom, ion or a molecule we are considering as a ball. Okay, and build up 3-dimensional structure in 3 steps. बॉल कंसिडर करके उसको 3D में अरेंज करना है हमें. Okay, in 3 basic steps. So let us see that now. Okay, what are these 3 basic steps? These 3 basic steps are: the first one, that is close packing in 1 dimension. Close packing in 1 dimension. Packing in 1D. Okay, 1D means packing आपको कैसे करना है 1 dimension में. Okay, so when you are doing the close packing in 1 dimension structure, okay, when you are doing the close packing in the 1 dimension structure,
At that time, there is only one way of arranging the sphere in one dimension closed pack structure. सिर्फ एक ही तरीका है, ओके, पैक करने का दोस्तों, ओके। एंड उस स्फीयर्स को आपको क्या करना है, स्फीयर मतलब कि गोला, द बॉल, ओके, वी हैव टू प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रो टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को स्पर्श करे ऐसे रखना है, ओके। सपोज this is the one sphere, okay, this is not the actually the sphere, okay, but it's a rectangle. Now the another rectangle, okay, so both this rectangle we have to place it together, एक साथ में रखना है, okay, in a horizontal row, it should be touch, it should be in contact, okay। तो कंसिडर कर लो कि ये जो रेक्टेंगल है दोनों, ओके, दे आर नॉट द रेक्टेंगल, ओके, इट इज द स्फीयर, ओके। सो ऐसे आपको अरेंज कर देना है, ओके। सो द क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इन वन डायमेंशन, ओके। हियर यू कैन सी द डायग्राम, ओके। See that the one ball, okay, is sticking, is in the contact with the other one, okay, one ball is in the contact with the other ball is in contact with the other ball, likewise the continuous process is ongoing, okay। So if you ask, this particular one ball is in the connection with the 1 and 2 balls, okay, so one ball here is in the connection with the 2 balls, okay। This is what the coordination number, that is the coordination number, उसको हम क्या बोलते हैं, coordination number। So the number of nearest neighbors of the particle is called the coordination number, okay। horizontal row में कांटेक्ट में रखा गया है, okay। So here अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बॉल जो है उसके आसपास 2 बॉल है, so the coordination number of any one ball will be 2, उसका coordination number 2 हो जाएगा, okay। अभी आप सोचोगे कि ये coordination number क्या है भाई, so coordination number मतलब what, the ball here, the sphere is there, this sphere is in the contact with how many spheres, that is considered to be the coordination number, okay। So this is what, once again, the coordination number, nearest neighbors of the particle is called as its coordination number, और coordination number यहाँ पे close packing in 1D का कितना है, 2, okay। Now the next step, close packing in 2 dimension, okay। close packing हमें करना है किसमें, 2 dimension, okay। So when you are doing the close packing in 2 dimension, okay, 2 dimension closed pack structure जो है can be generated by placing the 2 rows close packed spheres, 2 रो लगानी है भाई हमें, और दोनों रो closely packed चाहिए, ठीक है। and the rows can be combined in the following 2 different ways, 2 रो लगानी है, वो 2 रो कैसे लगानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास 2 डिफरेंट अरेंजमेंट है उसके लिए। द फर्स्ट वन, दैट इज दी, जो सबसे पहला है हमारे पास, ओके, इज दी स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कौन सा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। द फर्स्ट वन इज द स्क्वायर क्लोज पैकिंग and the second one is the hexagonal close packing, okay, square close packing and hexagonal close packing, okay। let us see one by one, एक एक करके हम ये देखेंगे, okay। so once again, close packing in 2 dimensions, stacking the rows of closed packed spheres, square close packing and hexagonal close packing, okay। now the first one, that is the square close packing। क्या नाम है, square close packing, okay। so square close packing में बच्चों आप देखो यहाँ पे the diagram number 1, the first one, okay, let me show you this one, okay। आप यहाँ पे देख सकते हो the first one, the first stack, the second stack, then third stack and fourth stack, ये चारों के चारों जो स्टैक है
आपको एक स्टैक के ऊपर दूसरा स्टैक कैसे रखना है, इट शुड बी क्वाइट सिमिलर, एक दूसरे के जैसा। कैसा चाहिए, एक दूसरे के जैसा। ओके, सो सपोज मैं कोई एक लाइन को, एक रो को बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल रो को ए, कैपिटल ए, ठीक है, ए को, फर्स्ट रो को मैंने ए बोला है, तो दूसरी रो भी ए है, तीसरी रो भी है, चौथी भी ए है भाई, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लो कि जो पूरा अरेंजमेंट है इट इज क्वाइट सिमिलर। ओके, द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स लाई वन बिलो अनदर, एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, एंड अगर इसका कोई आपको क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे कि भाई इसका क्लोज पैकिंग का, क्लोज पैकिंग का, स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, ये डायग्राम में आप देखो। ओके, द 1 2 देन 3 and 4. So one ball which is in the center, it is in connection with the 4 different balls. Okay, so the coordination number for square close packing in 2-dimensional structure is how many? 4. कितना रहेगा बच्चों? 4. ओके, सो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर आप देखो बच्चों, जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, स्ट्रक्चर उसका स्क्वायर हो रहा है। ओके, स्ट्रक्चर उसका कैसा हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई, इसलिए इसका जो नाम है वो हमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग दिया गया है। ओके, सो ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, वंस अगेन यहाँ पे आप देखो बच्चों, 3 डायग्राम्स आई हैव मेंशन, 3 अलग अलग डायग्राम। ओके, द वन डायग्राम विच आई हैव शोन द प्रीवियसली, उसमें अगर आप देखो तो आपके पास ए ए ए ए ऐसा अरेंजमेंट है। द पैटर्न ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इट इज ए ए ए ए टाइप ऑफ, ए टाइप की। ओके, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए। ओके, इन दैट मैनर द स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इज देयर। ओके, वेयर एज अगर आप देखो second diagram, the left one, the yellow balls, the central ball is there. Okay, that central ball is in the contact with the 4 different balls. So यहाँ पे coordination number कितना हो जाएगा दोस्तों? 4. ठीक है, after that the below diagram, in the corner which has been placed black and white, the shape it has been mentioned, आपको उसका shape दिया गया है। Okay, why the name has been given that square close packing structure? तो नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज द ज्योमेट्री जो बन रही है वो स्क्वायर बन रही है। ओके, दैट्स व्हाई द नेम हैज बीन गिवन दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, आफ्टर दैट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, सो इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखो नाम क्या है? हेक्सागोनल। ओके, व्हाट नेम हैज बीन गिवन? दैट इज द हेक्सागोनल। आपको नाम दिया गया है हेक्सागोनल। ओके, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में ही है भाई, अभी तक हम hexagonal close packing but in 2 dimension we are। okay, so another type of arrangement of atoms is shown below, and this type of packing is called as an hexagonal close packing। पर उसमें बच्चों हमें करना क्या है? what we will do, how to do the arrangement of this। so सबसे पहले आप ले एक horizontal रो लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो हॉरिजॉन्टल रो कैसे लगानी, ये वाली। सपोज कि हम ये बोल रहे हैं ए टाइप, ए ए ए A1। ओके, उसके ऊपर जो रो लगा रहे हैं, ठीक है, उसको कैसे रखना है कि जो ये ए है, ठीक है, ए के एटम, जस्ट अ मिनट, यस, ये देखो ये 2 ए है, ठीक है, उसके बीच में जो ये स्पेस दिख रही है, ठीक है, ये 2 बॉल जो है उसके बीच में जो ये स्पेस दिख रही है, वो स्पेस में आपको स्टैक पूरा लगाना है हर एक गोले में। देखो, ठीक है, हर एक गोले में।
पर अगर आप देखोगे ये दो लेयर को, कौन से दो लेयर, दिस वन ए एंड बी, ये और ये ऊपर वाला, ये दोनों लेयर का जो पैटर्न है इट इज नॉट सिमिलर, वो सिमिलर नहीं है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। ओके, वो कुछ अलग है, तो उसकी वजह से उसको हम ए तो नहीं बोल सकते। इफ इट इज सिमिलर तो वो लेयर को हम क्या बोलेंगे, ए लेयर, बट इट इज नॉट सिमिलर, इट इज क्वाइट डिफरेंट, तो उसको हमने बी बोल दिया है, कैपिटल बी। ठीक है, देन द थर्ड लेयर आप देख रहे हो, इट इज क्वाइट लाइक सिमिलर टू द ए। अब ये लेयर देख लो, ए और ये ऊपर वाला थर्ड लेयर, इट इज क्वाइट सिमिलर। ओके, तो ए बी एंड देन वंस अगेन ए, स्टिल इफ यू मूव अप फॉरवर्ड, ओके, और एक लेयर लगाओ, तो यहां पे आप अरेंजमेंट देख लो बच्चों, तो ए बी टाइप ऑफ पैटर्न इज देयर। कौन सी पैटर्न है, ए बी टाइप ऑफ पैटर्न। ओके, नाउ यहाँ पे अगर आपको ये जो अरेंजमेंट है उसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। क्यों नाम ऐसा दिया गया है, why the name it has been given in this manner, ऐसा नाम क्यों दिया गया है, why the name has been given hexagonal close packing। ठीक है, सो आज सैटरडे दिख रहा है, यहाँ पे बच्चे बहुत कम है, ठीक है, और कुछ बच्चे शायद अभी अभी ज्वाइन हुए, नो प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। why the name has been given hexagonal close packing structure, because अगर आप यहाँ पे देखो, ये देख लो, ये जो 6 के 6 गोले हैं, ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जो है इट इज इन द कांटेक्ट विद 6 एटम। देखो आप यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ, देखो ये कोई भी एक ये सेंट्रल एटम ले लो, कंसिडर करो, ठीक है, फिर ये जो है आसपास एक, 1 2 3 4 5 और 6 गोले के साथ कांटेक्ट में है। सो इन केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, कितना रहेगा, 6। why the name is being given hexagonal close packing, because आप देख लो ये 6 के 6 गोले जो है उसको आप कनेक्ट कर दो, then the structure is like of benzene, hexagon, that's why the name has been given, that is the hexagonal close packing structure। okay, see the topic is quite imaginary, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ तो बच्चों अब तक जो हमने बात की, इट वाज close packing in 1D, that is in 1 dimension, then close packing in 2 dimension, close packing in 1 dimension में से हम गए close packing in 2 dimension में, ठीक है, now we have the close packing in 3 dimension, 3D। अभी देखो रियलिटी में आप आपके आसपास देख लो, देखो मेरे आसपास समझ लो कि ये मोबाइल है, तो इट इज इन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर है। okay, 3D structure means it possesses the x, y and z, all these 3 axes। okay, so if you see the real world surrounding of us, surrounding of you, तो आपको रियल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर विच इज इन द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। ओके, वो 3D में रहता है, विच possess all 3 different axes। ठीक है, तो रियलिटी में अगर जो भी बात हो रही है वो 3D में होती है, तो क्यों ना हम भी 3D में बात करें, वी कैन, बट इट इज क्वाइट इमेजिनरी वंस अगेन। ठीक है, मैं जो बोलूंगा वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, सो दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स ऑन वन अबोव द लेयर। आपको 2D के जो लेयर है उसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देना है, बस वेरी मच सिंपल। तो 2D में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर थे, एक था ऊपर वाला 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से हमें जाना है 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बच्चों। ओके, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, मतलब कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से हमें जाना है 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, देन the second one, the below one,
टू डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है, बेंजीन जैसा, उसमें से हमें जाना है 3 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. Okay, 2 dimension square close packing to 3 dimension square close packing. Then the second category is 2 dimensional hexagonal close packing to 3 dimensional hexagonal close packing. Okay, so let us see these both once again. What we have done it today, 1 dimension close packing in 1 dimension, then the second close packing in 2 dimension. Close packing in 2 dimension में हमारे पास दो चीजें थी. Okay, square close packing and then the hexagonal close packing. Then हेक्सागोन, अभी देखो थर्ड कैटेगरी क्लोज पैकिंग इन 3D, रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. ओके, तो उसके लिए हमारे पास दो एरिया है, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जाने वाले हैं. ठीक है, 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में से हम जाने वाले 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में. ओके, सो लेट अस सी दैट. यस, सो फर्स्ट वन, that is 2D square close packing into the 3D. ओके, हम क्या करने जा रहे हैं, 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से 3D में जाना है. 2D में से 3D में, पर कौन से शेप में से, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से एक स्क्वायर में जा रहे हैं, पर 2D स्क्वायर टू 3D स्क्वायर हम जा रहे हैं. ठीक है, फिर वो मैथमेटिक्स वाला स्क्वायर नहीं है, वो होल स्क्वायर वी यूज्ड टू से. Shape of geometrical shape we are calling. If the arrangement of the sphere in the first layer is called A type, पहले लेयर को हमने क्या बोला है, A type. All the layers have the same arrangement. आप जो एक थप्पी लगा रहे हो, एक स्टैक लगा रहे हो, ओके, उसके पीछे ही सेम टू सेम दूसरा लेयर लगा रहे हो, उसके पीछे ही सेम टू सेम तीसरा लेयर लगा रहे हो. ओके, बट इट इज सिमिलर. वो कैसा रहने वाला है, एक जैसा. जैसे कि मैं आपको एक अरेंजमेंट दिखा रहा हूं, एक लेयर, ठीक है, उसके पीछे दूसरा लेयर, इट इज क्वाइट सिमिलर. समझ लो कि दोनों रेक्टेंगल एक जैसे ही है. ठीक है, उसके आगे और एक लेयर. ठीक है, सो ये जो है 3 अरेंजमेंट देख लो. ऑल्दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक सिमिलर, A, A, A. So the pattern will be which kind of pattern here? Thus, these lattice has triple A, A type of pattern. We have written triple A, but it is repetitive. A, n number of atoms, whatever number of atoms are there, till that. Okay. The lattice, thus, generated is the simple cubic lattice. ये जो अरेंजमेंट बन जाएगा वो क्यूब बनेगा, मतलब कि आपका रूम. ओके, देखो ये बच्चा अभी आ रहा है. आपका रूम, आपका जो पूरा रूम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्यूब जैसा होता है. ठीक है, आप जो भी रूम में बैठे हो, आप कोई रूम में बैठे होंगे, ठीक है, तो वो रूम का अरेंजमेंट देखो सब लोग पहले. ठीक है, आप जो रूम में बैठे हो, ठीक है, वो रूम का अरेंजमेंट देख लीजिए. ठीक है, मैं बैठा हूँ रूम में ही. ठीक है, तो उसमें मुझे जो क्यूब जैसा पूरा जो, हाँ शेप कुछ डिफरेंट है तो बात अलग है. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल बात हो रही है. ठीक है, नॉर्मल रूम की एवरेज रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा होता है नॉर्मली. ठीक है, तो उसमें अगर आप देखो तो आपके पास कितनी साइड्स है, 6 साइड्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक. ओके, सो ऐसे टोटल मिला के आप देख लो जो 6 साइड्स. कॉर्नर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि सिंपली तरीके से बोलो 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले, टोटल 8 कॉर्नर, यानी कि 8 एंगल्स हो जाएंगे. 6 साइड्स 8 एंगल. ओके, तो ये बन जाएगा आपका सिंपल क्यूबिक लेटाइस अरेंजमेंट. कैसा अरेंजमेंट रहेगा, सिंपल क्यूबिक लेटाइस फॉर्म.
ये जो अरेंजमेंट है आपका वो सिंपल क्यूबिक लेटाइस का हो जाएगा, ठीक है। So once again, we are in 3-dimensional in the real world. हम रियल वर्ल्ड में, जिसमें 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से हम जा रहे हैं 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, जिसका पैटर्न रहने वाला है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। ओके, अब आप यहाँ पे देख लो, ये जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, द स्टैक्स, डिफरेंट स्टैक्स इट हैज बीन गिवन, बट ऑल द स्टैक्स आर क्वाइट सिमिलर, दैट्स व्हाई द पैटर्न विल बी कैपिटल ए। ओके, चलिए नेक्स्ट। नाउ the next category is जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास बच्चों 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब कि 2D में से हमें 3D में जाना है, 2D में से 3D में एक बार तो चले गए, बट इट वाज फॉर स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D टू 3D, बट 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमें जाना है। ओके, 2D hexagonal close packing to 3D hexagonal close packing. So let us move in this 2-dimensional hexagonal close packing to 3-dimensional hexagonal close packing structure. So here 3-dimensional closed pack structure can be generated by placing layers one over the other. The strategy is quite similar. We have to place the different layers only on one another, and there are two criterias. दो तरीके हैं. The number one, the first one, it is placing the second layer over the first layer. आपके पास एक लेयर ऑलरेडी रेडीमेड है, उसके ऊपर और एक लेयर लगा रहे हो. So placing the second layer over the first layer is the first one. Okay, and the second category, that is the below one, that is placing the third layer over the second layer. तो आपको बेसिकली यहाँ पे देख लो दो तरीके हैं. ओके, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर लगा लो बच्चों, ठीक है, दूसरे लेयर के ऊपर तीसरा लेयर लगा लो, तो ये सेकंड तरीका हो जाएगा. ठीक है, सो 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टू 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इफ यू आर मूविंग. ओके, so in that case you have 2D hexagonal close packing to 3D hexagonal close packing. Okay, we have to place a different layer. Okay, we have to place a different layer. So in that, if you see that placing the second layer over the first layer, and the second category, that is the placing this one, placing the third layer over the second layer. Okay, so these are the two different strategies. Okay, now see here, till now whatever, once again let me revise it in short, because the few students they have joined just now. No issue, maybe network issue would be there, or the Saturday effect would be. So let me just show you the few slides so that very easily you can able to understand. I am saying it is very easily, but it is little bit imaginary part. So we have started with the close pack structures. Here I have given the example to you that पैकिंग कर रहे हो आप बैक पैकिंग, तो उसमें पैकिंग कैसे करेंगे बढ़िया तरीके से, सो दैट उसके अंदर मिनिमम बैक एंड स्पेस रह जाए. ठीक है, ये स्लाइड के लिए मैंने इतना आपको बोला था. देन द सेकंड थिंग, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन. ओके, आपको लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल रो. ओके, उसमें आप देख लो कि एक जो बॉल है विट इज इन द कॉन्टैक्ट विद टू डिफरेंट बॉल्स, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2. ओके, देन द नेक्स्ट स्लाइड, close packing in 2 dimension में we have 2 different parts, square close packing and hexagonal close packing. Okay, after that square close packing, why the name has been given square, because the shape is quite like square. Okay, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर चौथा लेयर, जो भी लेयर लगा रहे हो ये टाइप इट इज. ओके,
सो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएंगे, ठीक है, एक बॉल 4 बॉल के कांटेक्ट में रहने वाला है। Then hexagonal close packing, the shape is like hexagon, like benzene ring, okay, A pattern, A के ऊपर अगर आप दूसरा लेयर लगा रहे हो, it is the not like similar, that's why it is called as a B layer, पैटर्न चेंज हो गई, okay, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएंगे। Then close packing in 3D real world, okay, in reality, generally in the real world if you see it is like this, ओके तो उसमें 2D स्क्वायर क्लोज पे 2D में से ही 3D में जाना है बच्चों। 2D में हमारे पास दो एरिया थे, 2D इट वाज दिस 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड देन वी नीड टू मूव फ्रॉम द 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू 3D, दैट इज इन 3 डायमेंशन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके, एंड देन 2D hexagonal close packing to 3D hexagonal close packing we have to move, okay, so this is the way how we need to move from the one place to the other place, okay, in from the 2-dimensional structure we need to move the 3-dimensional structure, okay, so in the 2-dimensional structure if you see, okay, it is the square close packing, 2-dimensional square close packing to 3-dimensional square close packing, okay, then the second category it is 2-dimensional hexagonal close packing to 3-dimensional hexagonal close packing, okay. After that 2D square close packing to 3D we need to move, so whatever the layer we are placing it is quite like similar, that's why the name has been given AA type, okay, and then 2D hexagonal close packing we have two different areas, placing second layer above the first layer and the second category that is placing the third layer over the second layer, okay. So that's all for today, okay, we'll be keeping it till here, okay, कुछ भी डाउट हो then you can ask me, मेरी टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, इसमें रेगुलरली वीडियो का पोस्ट मैं उसमें करता रहता हूँ, ठीक है,